Namaste and a very warm welcome to everybody present here, all the instructors of the sports, to all our distinguished trainers on this particular session on Bharatiya Khel. And the first game that we're going to be looking at is Lagori Pittua Satolia. This is the orientation session for instructors who are requested to play this game and then teach it to their students so that the entire country can be enjoying the special qualities and the special benefits that these games have to offer us. तो नमस्ते मैं अभी शुरू करूंगी हमारा ये सेशन एक मंत्र से जैसे हमारे डिवीजन में हमेशा किया जाता है और फिर हम अपना सेशन को आगे ले जाएंगे ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Namaste and a very warm welcome to everyone once again to the Bharatiya Khel orientation session for instructors being organized by the Indian Knowledge Systems Division of the Ministry of Education. So, the next slide, please. This particular initiative of ours of Bharatiya Game is done in collaboration with MyGov, the Pittu Federation of India, as well as with Fit India and Jai Anusandhan, which has given us a lot of support for the video preparations, along with a lot of schools and different organizations that many of you belong to, the Chinmaya Foundation, the Sri Aurobindo Society. There are many other organizations, the Krida Bharati, there are many other organizations that are being part of this movement. And we welcome all of you to be an active participant of this movement that we are trying to initiate in the country of connecting once more to our games of the land. And the people who will be taking the session through, so we've got Professor Ganti Murthy, who is the national coordinator, and he will join us if possible. And I'm Dr. Anuradha Chaudhary, we are coordinator at the Indian Knowledge Systems Division of the Ministry of Education. हमारे साथ we have Sangeeta Goswami ji and Amitabh Satyam ji, who are the IKS Games ambassadors, and Gulab Singh ji and Krishna Gopal Mishra ji, who are the joint secretaries of the Pittu Federation of India. We also have with us Piyush Kantipal ji, who is a research fellow as well as the assistant coordinator at the Indian Knowledge Systems Division. So I'll just tell you a little bit. मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी about this Bharatiya Indian Knowledge Systems Division itself. So the vision of the IKS division is that this division is created especially in the context of the National Education Policy NEP 2020, and its vision is to rejuvenate and mainstream Indian knowledge systems for the contemporary world in the current societal context. So just two words on this. Our civilization had about 24% of the world's GDP for almost 2000 years. And such a high prosperity was possible on very detailed systems of knowledge that were very well integrated and taught and transmitted to the society in a way that everybody connected to the deeper philosophy of this land. And therefore, one of the main objectives of the IKS division is to honor the parampara, the continuous knowledge traditions of Bharata since time immemorial. The second is to identify what is the drishti or the underlying worldview, the unique perspectives that are provided that makes this knowledge system Indian or Bharatiya and that is valuable to the world. And third is that we would like to highlight the Laukika Prayojana or the practical utility of the Indian knowledge systems to solve current and emerging problems of India and the world, of Indians and the world. So these are the three objectives with which our division does various kinds of activities. You can find us on iksindia.org. One of the various initiatives that we have is also to set up centers, research centers, knowledge, and then language centers and teacher training program centers. We have institutional internships. We also are influencing education from the school education all the way up to the higher education.
we have, besides these mainstream programs of ours, we have various kinds of separate initiatives, one being the Bharatiya Khel. So the Bharatiya Khel was one of the three programs that was announced in July, 29th of July 2022 during the NEP program to commemorate the second year of the declaration of the National Education Policy 2022, 2020. And this announcement was made by the Honorable Home Affairs Minister, Shri Amit Shah ji, as well as the Honorable Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji, and as you can see, several other very distinguished ministers and personnel from the Education Department and other ministries as well. So the objective of this Bharatiya Khel is something that we will hear in the session as we develop it. But while this game was announced, we are looking at how we can get more and more people to be playing these games across the country. So हमारे साथ the trainers that we have today are Amitabh Satyam ji, who is the co-author of the book The Games India Plays and Indian Sports Simplified. He is also he has a very vast background in management and all, and he is recognized as one of our IKS Games ambassadors. The second person is Sangeeta Goswamiji. She is a co-author of the book as well, and she's also an IKS Indian Games ambassador. And besides this, she also has a very flourishing counseling profession. So where she offers various kinds of people counseling for a better life. And I think she has discovered her passion in how sports can be a very natural way in helping people connect to themselves and to other people and build a team spirit, not just on the field, but outside the field as well. And we are very happy to have with us two trainers from the Pittu Federation of India. We have Krishna Gopal Mishra ji, who's a Joint Secretary and Technical Director. He himself is an instructor in a school, and we have also Gulab Singh Chauhan ji, who's also Joint Secretary and Director, External Affairs and Events from the Pittu Federation. And both these senior members of the Pittu Federation have played an important role in enthusing us and inspiring us to not just popularize the game, but also, as you will see, they will tell you how you can play this game professionally if you want to take it up more seriously in the future. So next, I would like to invite our IKS ambassadors for games, Amitabh Satyam ji and Sangeeta ji, to take over and tell you a little bit about the history of this Bharatiya Khel initiative, as well as to tell you about the rules of the game. We will also be joined by the Pittu Federation will then tell you a little more about it. And I will also move on to tell you a little bit about the competitions that we are conducting on the MyGov platform. We are very privileged that we will have with us representatives, the director of the Fit India program, Arun Gupta ji, Shri Arun Gupta ji, who will tell us about the Fit India program and where these games can play an important role in that. And then I would now like to request Sangeeta ji and Amitabh ji to take over. Thank you, Anuradha ji. Namaste, everybody. So, as Anuradha ji said, we have 6 games. We have identified 6 games in the first phase to roll out across the entire country in the first year. And the first one we have selected is Lagori, also known as Pittu or Satulia. But before we go into this specific of the game, which we'll be talking 90% of the time for, let's just understand why Bharatiya Khel. And as our culture, our civilization is 10,000 years old, and so is our parampara of games. So we have actually been playing these games forever. If you go back to Mahabharata, for sure mentions many games. Certainly, Shakuni Mama was playing a game that we all know of. Even at that time, there were sophistications in those kind of games. This is 5 to 7,000 years ago. And similarly, all the references we have in our ancient texts talk about our traditional games. And as you can see, the games evolve with time. Games evolve, games that evolve with the rest of the civilization is an integral part and inherent to that culture, to that region. And so that is why you would see that the games that evolve here are not ice hockey. Or similarly, many of the games that evolve here, our games are very intellectual and intellectually challenging games. They did not evolve elsewhere. So we have a unique set of games, very unique to our own region,
and we are trying to bring them back. I mean, I know certainly when I was a kid, there were a few games that we played, Indian games, and I'm sure my father and grandfather were only playing Indian games. But last 30, 40, 50, 60, or maybe 70 years, Western games have taken full control of our, perception, or when we think of Western games. When we think of games, we only think of Western games. So we are trying to bring Bharatiya Khel back into our fold. So all the 6 games that we have picked for the whole year rollout, why did we pick those games? And starting with Lagori, but then let's talk about all the remaining games, and it applies to Lagori very well. So the games are group games, so they are not individual games, or they are not to be played indoors either. They are outdoor physical outdoor games where. Should I speak Hindi actually, Anuradha ji? आप मिक्स करके बात कीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके कीजिए, बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड ग्रुप. मिक्स सो ग्रुप है. इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिक्स करके बात कीजिए ग्रुप में प्लीज. इंग्लिश वालों को आ ही जाएगा, हिंदी में ही बोलते हैं, बीच बीच में इंग्लिश डाल देंगे तो. All right, thank you. So the outdoor games and physical games, these are outdoor games. So all the 6 games you have to play outside, and in each player should be active at all times. So सारे खिलाड़ी हमेशा ही एक्टिव होने चाहिए जब खेल चल रहा हो. तो आप तो जानते हैं, मैं बार बार क्रिकेट के बारे में बोलता रहता हूँ. क्रिकेट में सब लोग बैठे रहते हैं, सिर्फ 2 आदमी खेल रहे होते हैं, बाकी आधी अपनी टीम के लोग बैठे रहेंगे, और वो जो प्लेयर फील्ड में है उसमें भी जो फील्डर होते हैं खड़े ही रहते हैं. हमारा गेम वैसा नहीं है. सारे खिलाड़ी हमेशा एक्टिव होने चाहिए, और हर एक खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए सारे रोल्स प्ले करने का. कि मैं नहीं कि मैं विकेट कीपर हूँ तो मैं सिर्फ वही करूंगा, और मुझे यहाँ पे हमारे सारे रोल्स को सभी खिलाड़ी खेलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मजा आता है. और उसमें हर एक खेल के हर एक स्टेज पे आपको तरह तरह के नए नए आउटकम्स होने चाहिए. पहले उधर चला गया, कभी उधर हो गया, कभी कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, उसके कारण गेम में ज्यादा एक्साइटेड बना रहता है. और ये सारे गेम्स जो हमने किए हैं, जैसे जैसे लागोरी ले लीजिए, वो हम लोग बताएंगे आपको कैसे खेलते हैं, आपने सुना ही होगा. वो हम लोग बच्चे लोग मिलके कहीं भी खेल सकते हैं, और गली में भी खेलते हैं. बेस्ट तो है कि हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खेलते हैं, और बचपन में तो हम लोग कहीं भी जगह निकाल के खेलते थे, और इसलिए हमने ऐसे गेम्स को लिए हैं क्योंकि काफी सारे लोग कहीं भी खेल सकें. तो अगर आप भी अगर अपने कम्युनिटी में देखें, तो ऐसे नहीं कि उसके लिए कोई कोर्ट है वो बुक करना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा सबको टैक्सी लेकर के, जैसे हम लोग टेनिस खेलने जाते हैं आजकल, वैसा नहीं. अपनी मोहल्ले में कहीं भी है, वहां पे चल खेलना शुरू कर सकते हैं. और उसमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है कि एक बड़ा रैकेट होगा या बॉल होगा. मेरे मतलब कोई रैकेट लो 12,000 का आता है, क्रिकेट बैट भी महंगा, वो सब कुछ नहीं चाहिए हमारे पास. तो ये सारे गेम्स बिना किसी इक्विपमेंट के हैं. छोटे इक्विपमेंट होंगे, वो थोड़े से कुछ 100 के भी होंगे, उससे ही कम. तो संगीता, आपको देते हैं. संगीता जी, आप बताइए आगे. जी, थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू अनुराधा जी. जैसे कि हमने बताया कि ये सारे खेल जो 6 हमने 1 साल के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो सभी आउटडोर गेम हैं और ग्रुप गेम है. कोई इंडिविजुअल गेम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे घर से, स्कूल से बाहर निकल के ग्रुप में खेले, उनका सोशल कनेक्ट हो, और जो प्रकृति से, मदर नेचर से उनका टच जो छूटता जा रहा है, वो वापस उसी जैसे पहले 10-20 साल पहले हम खेला करते थे, वैसे ही वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेले. और ये कोई कंपटीशन के लिए गेम ना हो के ज्यादा रिक्रिएशनल गेम्स हमने लिए हैं, जिसमें कि रूल्स हैं, नियम हैं, फिर भी आपको उतना ही आनंद है कुछ गोल अचीव करने का. तो पहला गेम की बात करते हैं, लागोरी और पिट्ठू, जिसको मध्य भारत में पिट्ठू के नाम से ज्यादा जाना जाता है. लागोरी नाम इंटरनेशनली फेमस है, तो हम इधर दोनों ही यूज कर रहे हैं. तो लागोरी एक खुले मैदान में खेलने का ग्रुप गेम है, जिसमें एक बॉल से पत्थरों से बने टावर को तोड़ना होता है, और दूसरी टीम है जो उसको वापस से बनाने में आउट कर देती है दूसरे टीम मेंबर को. तो ऐसे उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बीच में 7 पत्थरों को सजा के एक स्ट्राइकर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बाकी के टीम मेंबर्स वही बॉल से उनको आउट करने की कोशिश करते हैं. इस खेल की उत्पत्ति है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में. दक्षिण भारत के जितने भी हमारे रिसर्च में हमने पाया कि ज्यादातर खेलों का मूल हमने दक्षिण में देखा है,
क्योंकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से वो थोड़े बच के रह गए, तो बहुत सांस्कृतिक खजाना वहां से मिलके आता है। वैसे ही ये लागोरी खेल हमको उसका ओरिजिन साउथर्न पार्ट में मिला है। और भगवत पुराण में बोला गया है कि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ ये खेल खेला करते थे। और ऐसे ही हम बोल दें कि वो खेला करते थे, ऐसा नहीं है। अभी भी राजस्थान में एक पारंपरिक मेला जो चलता है मकर संक्रांति के दिनों में, उसी मेले में ये खेल अभी भी खेला जा रहा है। काइट फ्लाइंग के साथ साथ लागोरी खेल भी खेलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि जब मकर संक्रांति होती है तो सनलाइट में रहना कितना जरूरी होता है और फायदेमंद होता है। तो काइट फ्लाइंग तो होता ही है, साथ साथ में ये पूरे मेले में लागोरी खेल भी खेला जाता है। पुष्कर फेयर आप सर्च करके देख सकते हैं। इस खेल को बहुत सारे अलग अलग नामों से हमारे पूरे देश में जाना जाता है। करीब 25 से भी ज्यादा हमको नाम मिले हैं। जैसे कि हरियाणा में पिट्ठू गरम कहते हैं, राजस्थान में सितोलिया सतोलिया कहते हैं, बिहार में पिट्टो बोलते हैं, और केरला में डबाकली चट्टीपंद, तमिलनाडु में सात पत्थर मतलब येल कल्लम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, येल कल्लम उसको बोलते हैं। फिर येदू पेंकू लता जो आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, येदू इज 7 एंड पेंकू इज पत्थर। तो सभी जगह पर एक ही गेम अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि एक चीज पूरे प्रांत में एक जैसा खेल हम खेलते आए हैं, और ये हजारों वर्षों से उसका अस्तित्व बना हुआ है। बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के ये खेल चल रहे हैं, तो बहुत सारा उसमें कुछ तत्व है। ऐसे तरह के 7 पत्थर अलग अलग स्टाइल के इसमें लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे खेलते हैं। लागोरी में 2 टीम होती है। जो एक टीम स्ट्राइक करेगी, उनको ब्रेकर्स बोला जाता है। दूसरी टीम को डिफेंडर्स बोलते हैं, क्योंकि वो फील्डिंग करते हैं। 7 पत्थर या 7 कोई भी टाइल्स के टुकड़े, या फिर जो छत बनाने में काम आते हैं, मिट्टी के जो खपरे होते हैं उनके भी टुकड़े, कोई भी ब्रोकन पीसेस 7 आप ले लीजिए, और उसको यही सिर्फ सोचना है कि उनका साइज अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि हम उसको एक के ऊपर एक ऐसे बना के टावर बना सके। सभी एक शेप के नहीं लेने हैं। तो डिफेंडिंग का टीम का ऑब्जेक्टिव है कि ब्रेकर लोग जब वो स्टेक तोड़ के वापस बनाने जाएं, तो वो ही बॉल मार के उनको आउट करना है। तो इस खेल में ये यूनिकनेस है कि जो टीम ब्रेक करती है वही टीम उसको बनाने की प्रयास करती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक टीम ने तोड़ा तो दूसरी टीम बनाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो टीम तोड़ती है वही टीम के मेंबर्स उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सामने वाली टीम का रोल है कि वो उनको बनाने नहीं देते हैं, बॉल मार के आउट करते हैं। इसमें चाहिए क्या आपको, साधन में चाहिए एक सॉफ्ट सा बॉल, जो कि मारने से बहुत ज्यादा इंजरी नहीं हो, या पुराना कोई रबर का बॉल हो वो ले सकते हैं। बहुत हार्ड क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल जो बहुत नया है और लग जाए वैसा नहीं लेना है। और 7 जो स्टेक कर सके एक के ऊपर एक, ऐसे पत्थर या प्लास्टिक के फाइबर के डिस्क आप ले सकते हो। या फिर कोई गांव एरिया में आपको प्लास्टिक के डिस्क नहीं अवेलेबल है, तो आप टाइल्स के टुकड़े या मिट्टी के कुछ टुकड़े, वो सब आप इकट्ठा करके जो सिर्फ एक के ऊपर एक सजाना है। लागोरी का प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए? लागोरी के प्लेग्राउंड में भी हमको कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है कि बाउंड्रीज चाहिए, इतना फीट 150 फीट का ग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई भी घास वाले एरिया में, रेत वाले एरिया में, मिट्टी के ग्राउंड में, नदी किनारे या घर की गली कूंची में हम ये खेल सकते हैं, जहाँ की आपको 50 से 80 फीट का जो एक आयताकार मार्क आपको मिल सके। तो अगर आप स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बनाया जाए तो 80 फीट 81 फीट लंबा एक लंबाई का ग्राउंड, और उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 45 फीट। और उसके बीच में हमने एक बनाई है रेखा, जिसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। उसी सेंट्रल लाइन के बीचों बीच एक मार्क किया जाता है, गोलाकार या स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। उसमें लागोरी को सजाना है, स्ट्रेक करना है। अभी ग्राउंड के दोनों साइड पे 10.5 फीट की दूरी पे बनेगी डेंजर लाइन।
डेंजर लाइन मतलब कि जब बॉल फेंकते हैं और वो पत्थर को तोड़ना है, वो पत्थर उड़ के किसी को लग न जाए, इसीलिए ये डेंजर लाइन बना दी जाती है। वहां के एरिया में शुरू में कोई प्लेयर्स खड़े नहीं रहते हैं। अभी जहां पे ब्रेकर टीम को खड़े रहना है, वो सेक्शन में हम एक क्रीज लाइन बनाते हैं। तो क्रीज लाइन होती है लागोरी सर्कल से करीब 12 फीट की दूरी पर, जहां से बॉल फेंकेगा कोई एक स्ट्राइकर, और बाकी के खिलाड़ी वो क्रीज लाइन के पीछे खड़े रहते हैं। ये 7 पत्थर वाला लागोरी है। एक तरफ स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया है, पत्थर बिखर गए हैं। ऐसा ये इमेज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे बॉल के फेंकने से पत्थर बिखर रहे हैं। अब गेम तब शुरू होता है जब एक टीम का कोई ब्रेकर टीम का कोई भी एक स्ट्राइकर लागोरी को तोड़ता है, और फिर जब वो लोग उसको वापस से बनाने जाते हैं तो डिफेंडर टीम के जिसके हाथ में बॉल पहुंचा है वो लेके उनको मारने लगते हैं। अभी मारना इतना जोर से नहीं है कि किसी को हर्ट हो जाए, कमर के नीचे के पोर्शन में मार सकते हैं, और कोई भी एक खिलाड़ी के आउट होने से ब्रेकर की पूरी टीम आउट हो जाती है। लागोरी के बिल्कुल करीब एक डिफेंडर टीम का खिलाड़ी पोजीशन लेता है, जैसे कि हमारे क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, पर वो बहुत पास में होता है विकेट के। लागोरी में 5-6 फीट की दूरी पर एक विकेट कीपर के पोजीशन में एक डिफेंडर खड़ा रहता है, जो कि जैसे ही बॉल आएगा अपने हाथ में वो कैच कर लेता है, वही त्वरित पोजीशन में रहता है। ये खेल बहुत ही तेज रफ्तार वाले मूव्स और त्वरित डिसीजन लेने पे आधारित है। उसमें ऐसा सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा कि अभी मेरे पास बॉल आया है तो इसका करना क्या है। यू हैव टू बी रेडी टू पास टू समवन की जो दूसरा बॉल लेके ब्रेकर टीम को आउट कर सके, क्योंकि सारे ब्रेकर्स आपके लाइन में गोल में नहीं आएंगे, तो आपको वो बॉल पास कर देना है किसी अपने टीम मेंबर को जो लेके ब्रेकर को आउट कर सके। अगर जो ब्रेकर टीम ने बॉल मारा, लागोरी टूटा और फिर उन्होंने बिना आउट हुए उसको स्ट्राइक कर लिया वापस वही ऑर्डर में 7 पत्थर, तो तब वो जोर से चिल्लाते हैं लागोरी, मतलब कि हमने तोड़ के फिर से बना लिया। या जहां पे पिट्ठू नाम है तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि पिट्ठू, तो उनकी टीम की विनिंग है और उनको 1 पॉइंट मिलता है। पर ये कब होता है? जबकि लागोरी बनाते समय भी किसी को बॉल टच से वो आउट नहीं कर पाए हैं। अगर डिफेंडर प्रीवियस स्लाइड यहाँ, अगर डिफेंडर सक्सेसफुली किसी को आउट कर देते हैं एक भी टीम मेंबर को, तो पूरा टीम आउट माना जाता है। फिर रोल शिफ्ट हो जाता है, जो डिफेंडर थे वो ब्रेकर्स बन जाते हैं और जो ब्रेकर्स हैं वो अभी डिफेंडर का रोल करेंगे। जब डिफेंडर के हाथ में बॉल आता है तो वो लोगों को पकड़ के नहीं रखना है बॉल 3 सेकंड से ज्यादा। ये एक रूल है, अच्छा वाला रूल है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है। 5 मिनट में पूरा गेम आप खत्म कर सकते हो, बहुत स्विफ्ट गेम है। तो जिसके पास बॉल है वो पकड़ के नहीं रखेगा, फटाफट अपने टीममेट्स को पास करेगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई ब्रेकर आउट हो जाए लागोरी बनाने से पहले। ये ऑर्डर में स्टेट कर रहे हैं। प्लास्टिक के फाइबर के डिस्क हैं अलग अलग आकार के, जो पिट्ठू फेडरेशन से ये आइडियाज लिया गया है, तो वो एक के ऊपर एक स्टेट कर रहे हैं 7 डिस्क को। अभी इसमें स्कोरिंग कैसे होता है? जब ब्रेकर ने कोई लागोरी अरेंज कर दिया और उसके ऊपर सर्कल बना के लागोरी डिक्लेयर कर दिया, चिल्ला के डिक्लेयर कर दिया कि हमारा लागोरी बन गया है, तो उनको 1 पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट के बाद भी उनको फिर से ब्रेकर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि वो जीत गए हैं तो फिर से वही टीम ब्रेकर बनेगी। अगर डिफेंडर ने मार दिया और रिस्टेकिंग के पहले, मतलब लागोरी बनने से पहले कोई भी आउट हो जाता है तो पूरी टीम आउट हो जाती है और रोल फिर शिफ्ट हो जाता है। रोल शिफ्ट होता है पर डिफेंडर को इसका कोई पॉइंट नहीं मिलता है, बट वो डिफेंडर से अभी ब्रेकर के रोल में आ गए हैं। जो टीम 7 पॉइंट या 5 पॉइंट, आप अपने टाइम के हिसाब से पॉइंट्स रख सकते हैं कि 5 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है या 7 पॉइंट का। तो जिस टीम ने 7 पॉइंट पहले बना लिए वो टीम विनर है।
ये गेम टाइम के हिसाब से, प्लेयर के नंबर ऑफ प्लेयर के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से इतना फ्लेक्सिबल है कि आपके पास जितने प्लेयर हैं उतना आप पॉइंट्स, उतना टाइमिंग, उतने ही रिस्क भी ले सकते हैं। मैंने 9 और 11 पत्थरों से भी खेला हुआ है। तो ये पूरा क्रिएटिविटी का चांस इसमें बच्चों को मिलता है कि चलो कम लोग हैं तो हम 5 पत्थर ले लेते हैं, कम ग्राउंड है तो हम जल्दी टाइम लिमिट में पूरा करते हैं। आप अपना क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। और मैं तो कहूंगी कि 8 से लेके जो 18 साल के बच्चे हैं उनको चांस देना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें कि कैसे रूल्स बनाए, कैसे अपना जो टारगेट पोर्शन है वो बनाए, कैसे फील्ड को नापे, कितने पत्थर उनको लेने हैं, कैसे टाइप के लेने हैं, लेट देम डिसाइड, वो सब कर रहे हैं। रूल्स में ये है कि सबसे बड़ा रूल है कि जो स्ट्राइकर है उनको 3 चांस मिलते हैं, एक स्ट्राइकर को 3 चांस मिलता है, और ऐसे 3 प्लेयर को हमको लेना है, मतलब टोटल 9 चांस ब्रेकर टीम को मिलेंगे। पर अभी 3 चांस में अगर पहली बॉल मारी उसने और एक बाउंस हुआ जमीन पे और डिफेंडर ने कैच कर लिया तो वो स्ट्राइकर के बाकी के चांस मिस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्लेयर का चांस आएगा, वो भी ऐसे 3 बार ट्राई कर सकता है, पर उसका बॉल डिफेंडर टीम को कैच नहीं करना है। टोटल 9 चांस में अगर वो लागोरी नहीं तोड़ पाए तो भी प्लस पॉइंट डिफेंडर को 1 मिलेगा, क्योंकि उनके 9 चांसेस खत्म हो गए और उन्होंने लागोरी तोड़ नहीं सके। तो फिर वो जो डिफेंडर है उनकी कैटेगरी में जाता है +1 पॉइंट। इस खेल में सबसे कॉशियस ये रहना है कि आपको एक तो बॉल जोर से नहीं मारना है, हार्ड बॉल नहीं लेना है, कमर के नीचे के हिस्से में ही मारना है, क्योंकि ब्रेन में लग जाए या सर पे लग जाए तो बहुत चोट हो सकती है। तो सबसे टीचर्स को ये बात याद रखना है कि जो बॉल चूज करे वो सॉफ्ट हो, वो बहुत ध्यान रखे और मारते समय कमर के नीचे के हिस्से में मारे। इसमें स्किल जो है, आपने जैसे देखा कि इसमें एम करना है, टारगेट करना है, बॉल को थ्रो भी करना है, बॉल को कैच भी करना है, बॉल पास भी करना है और दौड़ते भी रहना है। तो इतने सारे स्किल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पर उसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ये स्किल उसको एमिंग बहुत ही अच्छा हो तो ही वो पार्ट ले सकता है। रीजनेबली गुड, अगर वो हेल्थी है, थोड़ा सा दौड़ सकता है, अच्छा सा एम कर सकता है, वो सारे खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें रोल शिफ्ट इतना इतना फास्ट है कि जो थोड़ा सा डल प्लेयर है वो भी टीम के साथ रह के एक्टिव हो जाता है। हाँ, और डिफेंडर्स जो हैं वो जब लागोरी से बॉल आता है तो कैच करने जब खड़े हैं तो लागोरी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, जो पत्थर या डिस्क उड़ के उनको नहीं लग जाए। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का एक वीडियो फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है जो हम देखेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन है दिमाग में, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अमिताभ जी इधर लगातार देख रहे हैं, आपके कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अमिताभ जी वीडियो चला देंगे? अमिताभ जी प्लीज वीडियो ऑफ करेंगे? I'll share. सुनाई दे रही है आपको? Can you hear? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई इस बार? हमारा जो पहले से विंडो खुला था ना वही चला हाँ वही दीजिए। किया था, बट एक फिर मैं एक और ट्राई करती हूँ, ठीक है? ये उसी वाले में आना चाहिए था। सुनाई दे रहा है ना ना? ना। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। इसी में होना चाहिए।
नहीं तो मेरे पास YouTube वर्जन खुला हुआ है, हम वो चला देंगे। हाँ, एक मिनट, जस्ट एक बार try करते हैं। हम्म। अभी पहले आया था, अभी एक बार तो पहले आ गया, अभी वापस नहीं है। सुनाई दे रहा? नो, हम्म। सुनाई दे रहा है साउंड? नहीं, सिर्फ पिक्चर आ रहा है, साउंड नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे मन। यस अभी आया था ना कुछ, अभी आया था आवाज। यस हाँ ठीक है, तो हम एक क्लास पर ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है हाँ कि नहीं। देन पीयूष वी हैव टू पीयूष वेट। जी बोल रहे हैं आ रहा है, पीयूष जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ, ठीक है? आशा करते हैं कि इस बार काम करे। ओके, एक मिनट। आप लोग साउंड ऑफ कर दीजिए, मे बी इट विल वर्क, तो साउंड ऑफ कर दीजिए। आपका संगीता, म्यूट एक कर क्वेश्चन दीजिए, कि आप अच्छा लोग अभी म्यूट कर दीजिए। वेट फॉर फ्यू मिनट्स सर। ये और एक हजारों वर्षों से हमारे मन को जो लुभा रहे हैं, उनमें से एक खेल है लागोरी। हाँ, पिट्ठू। पिट्ठू गरम, सतोलिया, सच्चरा, डबाकली, एजू कल्लू, लिंगोरचा, कई नाम है इसके। हर प्रांत में एक अलग नाम। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 7 स्टोन यूएस में कहते हैं, किलो कनाडा में, हाफ संग सऊदी अरेबिया में, और अफगानिस्तान में नाम है संतेकॉन। और 30 से भी ज्यादा देशों में अभी भी खेला जा रहा है। इस अनोखे खेल में 7 पत्थरों से बने टावर को तोड़ के फिर से बनाया जाता है, जो कि प्रतीक है बिखरने के बाद भी फिर से साहस करके नई शुरुआत। चलिए देखते हैं कैसे खेलते हैं ये खेल। लागोरी खेल 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। एक टीम ब्रेकर्स और दूसरी डिफेंडर्स कहलाती है। हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और हमारा लागोरी बनेगा 7 अलग-अलग आकार के पत्थरों से। सभी पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा करके एक टावर बनाया जाता है, जिसको ब्रेकर टीम के मेंबर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। कौन सी टीम पहले ब्रेकर्स का रोल लेगी, ये टॉस उछाल के निश्चित किया जाता है। ब्रेकर्स टीम से 3 खिलाड़ियों को मौका मिलता है लागोरी तोड़ने का, और वो तीनों खिलाड़ी 3 बार बॉल फेंक की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि ब्रेकर टीम से कुल मिला के 9 प्रयत्न हो सकते हैं। हाँ, अगर स्ट्राइकर ने जो बॉल फेंका वो एक बाउंस के बाद भी डिफेंडर ने कैच कर लिया हो, तो वो स्ट्राइकर आउट हो जाएगा। फिर उसको बाकी के चांस नहीं मिलेंगे। लागोरी का मैदान मिट्टी, रेत या कंक्रीट वाला या घास वाला बगीचा भी हो सकता है। अपने घर की गली या आंगन का 70 से 80 फीट लंबा और 40 से 50 फीट चौड़ा खुला एरिया काफी होता है। हाँ, अगर फॉर्मल टूर्नामेंट्स हो तो कुछ निश्चित मापदंड होते हैं फेडरेशंस के, जैसे कि लंबाई 81 फीट और चौड़ाई 45 फीट होनी चाहिए। मैदान के बीचों बीच एक सेंटर लाइन खींची जाती है, जो पूरे मैदान को 2 आयताकार हिस्सों में बांट देती है। उसी लाइन के ऊपर बीच में एक छोटा घेरा यानी कि सर्कल बनाए, जिसमें लागोरी का टावर रहेगा। सेंटर लाइन से 10.5 फीट की दूरी पर दोनों तरफ खींचनी है डेंजर लाइन।
की शुरुआत की पोजीशन में कोई खिलाड़ी इन लाइंस के अंदर नहीं रहेगा। सेंटर लाइन से 12 फीट की दूरी पर कोई भी एक तरफ एक लाइन बनेगी जो कि कहलाएगी क्रीज लाइन। उसी लाइन के पीछे खड़े होकर ब्रेकर टीम के स्ट्राइकर्स बॉल फेंकेंगे। टीम के बाकी खिलाड़ी उसके पीछे पोजीशन लेंगे। जैसे ही कोई बॉल थ्रो से लागोरी टूटता है, आहा, अब शुरू होता है खेल का मजेदार हिस्सा। लागोरी टूटते ही ब्रेकर टीम के सभी खिलाड़ी पत्थरों को फिर से जमाने की कोशिश में लग जाते हैं। पर सुनो, ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि डिफेंडिंग टीम लगातार उनको बॉल मार के आउट करने में लग जाती है। इसलिए अपने आप को बचाते हुए टीम मेंबर्स की सहायता से लागोरी को फिर से जमाना, यही खेल का तत्व है। और हाँ, लागोरी के पत्थर उसी क्रम में होने चाहिए जैसे शुरुआत में रखे गए थे। मतलब कि सबसे पहले बड़ा और ऊपर सबसे छोटा। आउट होने का डर, जल्दबाजी, विरोधी टीम खिलाड़ियों की चाल का ध्यान और ऊपर से पत्थरों को बैलेंस करना, इतना सब कुछ करना होता है थोड़े से पलों में। यदि आपने सातों पत्थरों को फिर से जमा के लागोरी को बना दिया और उस दौरान एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, तो ब्रेकर टीम की जीत है। और आप जोर से चिल्लाते हैं, लागोरी, और आपकी टीम को मिलेगा 1 पॉइंट। किंतु लागोरी बनाते समय एक भी खिलाड़ी बॉल से आउट हुआ तो पूरी टीम आउट हो जाती है, और तब जो डिफेंडर टीम है उसकी बारी आती है लागोरी तोड़ने की। माने कि अब रोल शिफ्ट हो गया है। ये तो हो गई ब्रेकर टीम की बात। अब जानते हैं कि डिफेंडिंग टीम के क्या रूल्स हैं। डिफेंडिंग टीम को सतर्क रहना होता है 2 बातों के लिए। पहली, जब ब्रेकर टीम बॉल थ्रो करे उसको कैच करना है, और दूसरी, लागोरी टूटने के बाद बॉल को फटाक से लेकर ब्रेकर टीम के मेंबर्स को आउट करना है। और उसके लिए आप अपने टीम मेंबर्स को बॉल पास कर सकते हैं जो कि ब्रेकर टीम्स के किसी भी मेंबर के नजदीक खड़ा है। और हाँ, आप बॉल को अपने हाथ में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते। बॉल को लगातार दूसरे टीम मेंबर्स को पास करते रहना है, जिससे कि जल्द से जल्द कोई ब्रेकर को आउट कर सके। ध्यान रहे कि बॉल से मारते समय किसी भी खिलाड़ी को घुटनों के ऊपर के हिस्से में बॉल ना लगे। पैरों की तरफ ही बॉल मारना है, जिससे कि स्पाइन इंजरी और हेड इंजरी से बचा जा सके। तो ये था खेल लागोरी। आपने देखा दोस्तों कि कैसे इस खेल में स्ट्राइकिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग और विकेट अरेंजिंग सभी रोल शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी सभी खिलाड़ियों के लिए। आप भी खेलिए और बताइए लागोरी का कौन सा रोल आपको अच्छा लगा। खेलते रहिए, खुश रहिए। बढ़िया। अमिताभ जी, आप प्लीज टेक ओवर कीजिए। और हम जी हाँ, ठीक है। तो अभी हम बुलाएंगे फिफ्टू फेडरेशन, भारत के फिफ्टू फेडरेशन की तरफ से मिश्रा जी आए हुए हैं, कृष्ण गोपाल मिश्रा। और वो बता दे, अभी तक जो संगीता ने बताया वो था ऐसा जिसमें अधिकतर हम लोगों ने दिखाया कि कैसे हम लोग मोहल्ले में, कैंपस में खेल सकते कहीं भी बिना किसी ओवरऑल प्लानिंग के। लेकिन अभी फेडरेशन है जिसकी तरफ से बहुत सारी चीजें हो गई हैं, स्टैंडर्डाइज हो गई हैं, और उसके कारण अभी तरह तरह के टूर्नामेंट्स हो गए हैं, और ये लोग इस खेल को बहुत विश्व स्तर की बना रहे हैं। इसलिए मिश्रा जी, आप प्लीज आगे बोलिए।
धन्यवाद सर, धन्यवाद अनुराधा मैम, धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले की जो पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हम सबसे पहले जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड के हिसाब से हम अगर बात करें हिस्ट्री, तो इस गेम की हिस्ट्री के विषय में बताना तो किसी को भी, लेकिन मैं पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उनकी मन की बात में उन्होंने पिट्ठू शब्द का उच्चारण किया था कि हमारे ट्रेडिशनल खेल पिट्ठू जो है, पिट्ठू, बाकी और भी नाम बताए थे। इन खेलों को हमारे जो पारंपरिक खेल है, इन खेलों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इन खेलों को हमें वापस, इसे सभी लोग इसे वापस करें। इसी से प्रेरित होकर हमने जो हमारे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय से उनसे हमने इसका डिस्कशन करा और उनसे डिस्कस करके उनके गाइडेंस में हमने इस पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया। और ये जो फेडरेशन है, ये पिट्ठू को मीन्स ग्रामीण से लेकर के, मीन्स गांव से लेकर के शहर तक, और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारा जो इंडिजिनस मीन्स हमारे जो पारंपरिक खेल है, इन खेलों को भी हम मीन्स जरा एक राष्ट्रीय, मुझे लग रहा है कि आपका जो ब्लूटूथ कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर है, तो आवाज बहुत गूंज रही है। तो जी अगर तीसरे सके तो अच्छा रहेगा, सिर्फ बोलने समय तक सुनने के लिए वापस ले लीजिएगा। हाँ एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ, फिर से बोलिए बोलिए, शायद आ रही हो। मैं अगर हाँ जो हिस्ट्री, हाँ हम हिस्ट्री पर अगर बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री ये हमने श्री आदरणीय श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी की मन की बात में उन्होंने इस खेल को, अपने पारंपरिक खेलों को वापस सभी लोग जन तक पहुंचाने की उनकी मंशा थी। उसी मंशा को लेकर के हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय से के गाइडेंस में हमने इस फेडरेशन का गठन किया है। और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि इस खेल को ग्रामीण यानी गांव से लेकर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और अगर हम सभी का अगर सहयोग रहता है तो इसको ओलंपिक में भी हम हमारे खेलों को, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा था, मैं फिर वापस एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी जितने भी खेल खेल रहे हैं, ये सभी हमने 2028 के ओलंपिक्स में लेक्रॉस गेम का नाम सुना है कि लेक्रॉस गेम ओलंपिक्स में इंक्लूड हुआ है। अगर लेक्रॉस गेम की अगर हम हिस्ट्री अगर देखें, तो वो मीन्स बाहर की कंट्री का ट्रेडिशनल गेम है। वहां पर जो आदिवासी थे, आदिवासी उस खेल को खेला करते थे। जब वो लोग इसे कोशिश करके मीन्स उसके रूल्स को सिम्प्लीफाई करके और चेंज करके इसको ओलंपिक्स लेवल पे ला सकते हैं, तो हमारे गेम जो कि वाकई रियल में ही खेल है, उनको तो हम इवन ओलंपिक्स तक भी ले जा सकते हैं। तो उन्हीं को कि अगर हमें ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल लेवल पर यदि हमें जाना है, तो खेल का एक रूप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खेल का एक रूप नहीं होता है, तो वहाँ पर मीन्स फिर हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने की बात करें, तो वो थोड़ा-सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी को लेकर के पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस खेल के लिए काफ़ी कुछ नियम बताए हैं। संगीता मैम ने हमें जो बताया है, वो खेल हम बचपन से जो खेलते आ रहे हैं, वही खेल को मैम ने उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस भी किया, मीन्स ग्राउंड और ये सभी चीज़ें बताई। तो मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हम उसे बेसिक लेवल पे कैसे खेल सकते हैं। मीन्स इसका एक सीधा सा एक एग्जांपल हम माने तो क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है, और जरूरत पड़ने पर हम अगर गली में खेलना होता तो हम वैसे भी खेल लेते हैं। सेम वैसे ही संगीता मैम ने हमें जो गाइड करा है, संगीता मैम ने भी गाइड करा है कि आप लोग, जरूरी नहीं कि हमारे पास बड़ा ग्राउंड हो तभी हम खेल पाए, हमारे पास यदि छोटा ग्राउंड है तब भी हम खेल सकते हो, किस वे में हमें खेलना चाहिए। अगर हम पिट्ठू खेल के प्रमोशन की बात करें कि पिट्ठू खेल जो एसजीएफआई है, एसजीएफआई में 2021 में इंक्लूड हो चुका है। और इसको एमपी में स्पेशल गेम्स मीन्स एसजीएफआई स्कूल गेम्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने इसको स्पेशल गेम का
दर्जा दिया है कि इसे एज ए स्पेशल गेम ट्रीट किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी तक पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया टोटल 3 नेशनल सीनियर नेशनल करवा चुका है और टोटल 22 स्टेट ने उसमें पार्टिसिपेट करा था। और इसमें हम लोगों अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आने वाले टाइम में जनवरी में हम लोग 4 सीनियर नेशनल और 1 फर्स्ट सब जूनियर नेशनल कंडक्ट करवाने वाले हैं। और इसका एक जूनियर नेशनल जिसमें संगीता मैम और अमिताभ सर भी आए थे, उन्होंने भी देखा, ये इंदौर में कंप्लीट हो चुका है। और हम लोगों की अभी इसके आगे की जो प्लानिंग है, इस खेल को हम अभी 2024 में साउथ एशियन और एशियन चैंपियनशिप इसकी हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। और 2024 में ही एक पिट्ठू प्रीमियर लीग के नाम से हम लोग एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराएंगे कि जिससे, क्योंकि अगर किसी भी खेल को प्रमोट करना है, हम हमारे देसी खेल कबड्डी की बात करें, कबड्डी काफी पुराना खेल है हमारा, काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन कबड्डी में बूम या कबड्डी की जो एक नाम या लोग जो फेमस हुआ गेम, वो जो जब से कबड्डी प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ, तो अब सभी बच्चों को देखो तो सभी बच्चे बताते हैं कबड्डी का जो उसमें कबड्डी प्रीमियर लीग का जो साइन होता है, हाथ ऊपर करके मेरे पैर को हम वो ठोकना और हाथ ऊपर करना, वो लगभग अब किसी बच्चे के सामने किया जाए तो वो तुरंत पहचान लेता है। तो उसी के लिए कि इस खेल को एक गेम को पॉपुलर किया जाए, तो उसके लिए हम लोग 2024 में पिट्ठू प्रीमियर लीग का भी कंडक्ट कराएंगे। और हम लोगों का प्लान है कि 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हम कंडक्ट करें। और जो लोग यहाँ पर अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये स्कूल के बच्चों के लिए इसका क्या बेनिफिट है। मैं उसी का आंसर देना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी मीन्स अगर बच्चा किसी भी गेम में अगर आगे बढ़ना है, अगर वो किसी भी उसको करियर बनाना चाहता है, तो उसको गेम के रूल्स पता होंगे तो वो। और अगर हम स्कूल के बच्चों की अगर बात करें कि स्कूल के बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी कॉम्पिटिशन है। अंडर 14 हमारे इसमें अलग अलग एज कैटेगरीज है। अंडर 14 एज है, अंडर 14 है, फिर जूनियर है और सीनियर है। 3 एज कैटेगरी में हम लोग मेन इसके जो नेशनल है वो कंडक्ट करवाते हैं। जो सब जूनियर एज कैटेगरी है वो 10 to 14 ईयर्स मीन्स जो स्कूल के बच्चे हैं वो सब जूनियर के नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसडीएफआई में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एसडीएफआई में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो जूनियर है वो 14 to 18 ईयर्स तक के लिए इसकी जो एज कैटेगरी रहेगी, उसमें जूनियर के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अबाउ 18 जो बच्चे होते हैं वो सभी के सभी सीनियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो जैसे अब मैम ने जो बताया था, अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे आए, जैसे फील्ड जो है मैम ने जो बताया है वो तो हमारा फील्ड होता ही है। यहाँ पर जो पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो ग्राउंड और इसकी जो डायमेंशन फिक्स करे हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। उसके अलावा भी हम केवल यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को एक एक को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाता है और उतना ज़्यादा लंबा सेशन में व्यक्ति बोर फील करने लग जाता है। तो हम उसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए केवल जो इसका स्पेसिफिकेशन है, मेजरमेंट है, केवल इसको मैं शॉर्ट शब्दों में अगर कहूँ कि ये सभी स्कूलों में खेला जा सकता है। मीन्स इसके लिए केवल और केवल हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट की ज़रूरत होती है। सेम इसमें 2 लाइन, एक सेंट्रल लाइन होती है, उसको हम जब बास्केटबॉल कोर्ट है उसको 2 उसमें डिवाइड करते हैं। सेंट्रल लाइन के एग्जैक्ट 3 मीटर्स पर एक साइड ठीक है, यानी कि जो कहा जाएगा डेंजर जोन, या डेंजर जोन का जो एरिया रहेगा टोटल 6 मीटर होगा, जिसको हम जो दो आप जो भी आपको पीपीटी में रेड लाइन दिख रही है, ये डेंजर लाइन है। और इसके बीच का जो दोनों रेड लाइन के बीच का जो एरिया है वो डेंजर जोन है। डेंजर जोन मीन्स यहाँ पर मैम ने बताया कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर अंदर नहीं होता। और पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के बिहाफ में अगर बात करें तो इस डेंजर जोन में प्लेयर्स के सर पर बॉल नहीं मारी। जैसे हम लोगों ने इसके लिए स्पेसिफिक बॉल का भी जो है, बॉल का भी वेट हमने 65 to 70 ग्राम फिक्स करा है। सेम वैसे ही जो मैम ने बताया, इसमें 2 टीम पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2 टीम होती है। एक टीम होती है स्ट्राइकर टीम और एक होती है डिफेंडर टीम। जहाँ पर स्ट्राइकर टीम का प्लेयर खड़ा होता है जो कि पिट्ठू को मिस ब्रेक करने का कोशिश करता है, वो जो होता है वो वाला जोन पूरा स्ट्राइकर जोन है। जहाँ पर डिफेंडर टीम का प्लेयर बॉल को कैच करने के लिए खड़ा होता है, वो जो एरिया है वो डिफेंडिंग जोन होता है।
इसमें स्टैंडिंग पोजीशंस जो है जो एस से डिनोट करा है हमने वो सारे स्ट्राइकर हैं और डी से जिसको हमने डिनोट करा है वो सारे डिफेंडर। ये इसका पूरा मेजरमेंट और दिया हुआ है। इसके बाद में हम सेकेंड उस पर अगर आते हैं, हमने जो पिट्ठू जो है, पिट्ठू के जो सेट है उस सेट का भी स्पेसिफिकेशन हमने बनाया हुआ है। इस टीम में यानी अगर इसमें हम टीम की बात करें तो टोटल टीम में 10 प्लेयर होते हैं जिसमें से 6 प्लेइंग में होते हैं और 4 सब्स्टिट्यूट होते हैं। जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उन 4 को आप कभी भी मीन्स कैप्टन यदि चाहता है कि चारों को यानी एक क्वार्टर में एक हाफ में एक बार में हम कितने भी प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर कैप्टन को लगता है कि मुझे चारों प्लेयर्स चेंज करना है तो वो एक क्वार्टर में फर्स्ट उसमें चेंज कर सकते हैं चारों प्लेयर्स को, या उसे लगता है मुझे एक प्लेयर बस केवल, लेकिन उसे चांस केवल एक ही मिलता है प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने का। जो हमारा पिट्ठू सेट है, पिट्ठू सेट का भी हम लोगों ने मेजरमेंट पूरा फिक्स कर रखा है। उसका जो हमने कलर लिया है वो हमने सर इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड थी, इसका भी हमने जो कलर है विग्योर, अगर हम लोग इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष का कलर ही हमने इसमें लिया है। और पिट्ठू ब्रेक होने के बाद इसमें हमने टोटल 7 पीसेस लिए हैं। उन 7 पीसेस को मीन्स इसकी हाइट, इसकी लेंथ, वेट का सारी चीजें और डायमीटर ये सभी हमने इसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है। और इसको ब्रेक करने के बाद उन्हें वापस इसी सीक्वेंस मीन्स जो कलर है उस कलर के सीक्वेंस में ही उसे अरेंज करना जरूरी है। अगर हम इसे अरेंज नहीं करते हैं तो हमारा पॉइंट चला जाता है। इसके बाद में जो हमने बॉल का जो लिया है, बॉल भी हमने बिल्कुल इसका जो वेट है स्पेसिफिक 60 to 75 ग्राम वेट लिया है और ये स्फेरिकल शेप इसका होना चाहिए, क्योंकि जो 60 to 75 ग्राम की जो बॉल है उससे अगर किसी को हिट किया जाए तो उससे इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट उसमें बात करें, जो पॉइंट्स की बात करें कि यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकेशन दिया है, ये आपको हमारी जो साइड है हमारी IPS की जो साइड है उस पर भी आपको ये अवेलेबल रहेगा। इसमें केवल सारी चीज़ें कि कौन-कौन से ग्राउंड कितना होता है, उसके पिट्ठू जो है उसके डायमीटर्स कितना है, हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें भी हैं जो चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस करी है। ये आप इसमें काफ़ी आसानी से इजी वे में देख सकते हैं। इसमें जो ड्यूरेशन है, मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम लोग जब गली में खेलते हैं तो उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। उसमें अगर एक प्लेयर ने हिट करा, कैच हो गया तो पूरी टीम ऑल आउट हो गई, हिट कर दिया किसी को हमने तो पूरी टीम ऑल आउट हो गई और फिर नेक्स्ट टीम खेलने आती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि हमें खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना है, तो इसके लिए हमने इसका एक ड्यूरेशन फिक्स करा। तो जो टोटल ड्यूरेशन है वो 25 मिनट्स का है। मीन्स जो एक क्वार्टर है वो हर क्वार्टर 5 मिनट्स का है। पहले और थर्ड क्वार्टर के बीच में 1 मिनट का ब्रेक है और जो सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में 3 मिनट का मीन्स एक हाफ कंप्लीट मीन्स एक बार स्ट्राइकर टीम खेलेगी, एक बार डिफेंडर टीम खेलेगी। जब दोनों टीमें एक बार खेल लेती हैं तो उसको हम एक हाफ कह रहे हैं। तो जब एक हाफ कंप्लीट होता है तो एक हाफ से सेकेंड हाफ के बीच में 3 मिनट्स का ब्रेक हम देंगे। वो 3 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर गेम हमारा वापस कंटिन्यू होगा और ऐसे जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 25 मिनट्स का होगा। यही कि each team consists of 10 players. Of these 6 players will be the field and 4 players is substitute. ये अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो 4 प्लेयर्स हैं उनको हम एक बार में कभी भी एनी टाइम कभी भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन इसमें वही प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि स्टेट पिट्ठू फेडरेशन एसोसिएशन जो है या स्टेट पिट्ठू की जो भी यूनिट है उस यूनिट से वो रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी। प्लेयर्स यूनिफॉर्म की बात करें, हम लोग जब अगर हमारे घर के यहाँ खेलते हैं तो क्योंकि वहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेयर्स रहेंगे सारी टीम का सेम कलर होना चाहिए और उनके बीच में यानी बैक साइड पर नंबर 2 डिजिट नंबर होना कंपल्सरी। मीन्स 10 to 99 कोई सा भी नंबर जो प्लेयर्स को पसंद है वो नंबर अपनी टीम यानी उनके टी शर्ट पर मार्क्ड होना कंपल्सरी है। अगर और कोई भी प्लेयर सेम नंबर नहीं रख सकते, मीन्स जो हमारे 10 प्लेयर्स हैं सभी 10 प्लेयर्स के जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और जो
कोच मैनेजर्स हैं उनका भी ड्रेस कोड ऑलरेडी फिक्स है। अगर वो यदि टीम के साथ आए तो उनका भी एक ड्रेस कोड होना ज़रूरी है। अगर वो ड्रेस कोड नहीं होता है तो हम उन्हें फिर जो हमारा मेन एरिया है, प्लेइंग एरिया के आउटसाइड मीन्स हमने एक ऑफिशियल ज़ोन बनाया है जहाँ पर कोच और मैनेजर जहाँ से अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर किट या उसमें नहीं है तो आप यानी ग्राउंड के फील्ड के आउटसाइड से आप अपनी टीम को चेयर अप कर सकते हैं और दूसरों के साथ उससे शेयर नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें थी और यहाँ पर जो प्लेयर्स को जो पॉइंट्स मिलते हैं एक बार पिच को फुल अरेंज करने पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि बॉल हिट हो जाती है किसी प्लेयर को, यदि बॉल हिट हो गई तो वो प्लेयर आउट जाता है, आउट होकर के फील्ड के बाहर जाता है। और जब हमारी यानी वापस जो स्ट्राइकर टीम होती है वापस यदि वो पिट्टू को रीअरेंज कर देती है तो वापस तब वो प्लेयर जो जिसको बॉल हिट हुई थी वो प्लेयर वापस अंदर आ जाता है। और अगर हम जैसे बॉल यदि हम एक प्लेयर को 3 चांस मिलते हैं, 3 बार चांस मिलने के बाद में अगर उसने बॉल को हिट कर रहा है और अगर स्ट्राइकर टीम या डिफेंडर टीम है, डिफेंडर टीम में का प्लेयर यदि उसे कैच कर लेता है, जो कैचर होता है वो कैच कर लेता है तो वो आउट होगा, रोटेशन होगा और वो फील्ड पे ही रहेगा। लेकिन यदि अगर उसको बॉल हिट हो जाती तो वो क्या होगा कि फील्ड के बाहर जाएगा और जब हम उसी की टीम मीन्स जो स्ट्राइकर टीम है, स्ट्राइकर टीम जब पिच को रीअरेंज कर लेगी तब वो अंदर आएगा। और इसके बाद में जब हम खेल खेलते हैं तो खेल में भी जो रूल्स है वो फिर बाकी चीजें हम फील्ड पे काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद सर, यहाँ पर मेरा सेशन एंड होता है सर। मेरा बोलने के लिए मैं अपनी बारी को जवाब देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो ऐसा है कि हम लोगों ने 2 प्रस्तुत किए, आपको एक संगीता जी ने बताया, एक गीता जी ने बताया। अंतर विशेष नहीं है। एक संगीता जी ने बताया वो एक थोड़ा हल्का हल्का फॉर्म में है ताकि हम लोग बहुत आसानी से खेल कृष्णा जी, आप सकें। म्यूट कर दीजिए प्लीज। गीता जी ने बताया वो है फॉर्मल टूर्नामेंट्स के लिए। और मुझे दोनों पे हमें ध्यान देना है। जो लोग सुन रहे हैं वो आप अपने अपने स्कूलों में या जहाँ भी आपको मिश्रा जी वाला लेके चलिए आप, ताकि अपने स्कूल में टूर्नामेंट में भाग ले सकें। वैसे अगर आपको उसे इंकरेज करना है शुरुआत में तो हम लोग अभी इनफॉर्मल वाला ले सकते हैं। उसमें अंतर बहुत कम है, सिर्फ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटीज है कि छोटा सा बड़ा कोर्ट ले सकते हैं और खेलने के नियम में अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5 या 6 मिनट भी कर सकते हैं इत्यादि। तो अभी हमें इतना बताना है कि भारतीय खेल की जरूरत क्या है, हमको क्यों भारतीय खेल पर इतना ध्यान दे रहे हैं। अनुराधा जी ने बताया कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग सिर्फ खेल के हिसाब से देखते हैं अगर, तो सबसे पहली बात ये है कि खेल खेलने में हमें कुछ खर्चा नहीं लगता है। टेनिस कोर्ट या स्क्वाश कोर्ट बनाने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगता है और भारतीय खेल के लिए 1 पैसा भी नहीं। तो हम लोग कौन से खेल पे हमें अपना समय देना चाहिए? भारतीय खेलों के ऊपर में। और उसमें खेलने का रैकेट बॉल ये सब कोई टेंशन किसी तरह का नहीं है, कोई बुक नहीं करना है। बैंगलोर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे टेनिस खेलना तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा भी ड्राइव करना पड़ता है ट्रैफिक देख करके। और जबकि आपको ये पिट्ठू खेलना है कहीं भी खेल सकते हो बैठ करके, और मजा किसमें ज्यादा आएगा आप खेल के देख लो। तो इसलिए कोई महंगा कोई भी इक्विपमेंट या टूल नहीं चाहिए खेलने के लिए, रैकेट या बॉल बैट जैसी कोई चीज। उसके अलावा यह है कि यही सारे खेल हैं और खेलने के बाद में हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं हम लोगों ने खिलवाया है। हम लोग को 1 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को हम लोगों ने खेल खिलाया और हम लोग जब खेल के वापस आ गए कैमरे वगैरह लेके हम लोग वापस आ गए, वो बच्चे खेलते रहे और खेलते रहे और आगे भी खेलते रहे, ऐसा हमें पता चला बाद में। इसका मतलब है कि सबको खेलने में बहुत मजा आया है। और जो वेस्टर्न गेम्स होते हैं ना स्किल बेस्ड गेम होते हैं, मतलब कि बॉल को कहाँ प्लेस करना है, एक ही तरह से प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप लोग कोच है, अगर आप कोचिंग देखेंगे टेनिस की तो सिर्फ ऐसे करके एक ही चीज की प्रैक्टिस कराता रहेगा ताकि आप स्किल डेवलप हो जाए आपका मारने में। देखिए यहाँ जो गेम है स्ट्रेटेजी का गेम है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग का गेम है, तो इसीलिए खेलने के बाद में ज्यादा एक्साइटेड महसूस करते हैं हम लोग। और टेनिस को बैट आप किसी भी गोल्फ प्लेयर से पूछो कैसा रहा गेम, एक भी व्यक्ति नहीं कहे कि अच्छा गया है, आप कभी पूछ लेना। सबसे बड़ी बात ये है कि सारे हमारे ट्रेडिशंस को कनेक्ट करते हैं। हमारे जो पूरा जो इकोसिस्टम हमारी जो संस्कृति है, उसका एक अभिन्न अंग है वो। जैसे खाना खाने में हम लोग चावल, दाल, सब्जी के साथ में बर्गर का वो बन नहीं खाते हम लोग। उसी तरह से भारतीय जीवन जी रहे हैं तो उसमें टेनिस और स्क्वाश नहीं आता। हम लोग पता भारतीय खेल ही आते हैं उसमें। तो ये हमें वो थाली पूरी करनी है इस गेम को डाल करके।
उसके अलावा ये जो अगर हम लोग गली मोहल्ले में या कैंपस में, स्कूलों में या फिर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गेम खेलते हैं, तरह-तरह के लोग जमा हो जाते हैं और सब लोग खेलने लगते हैं एक साथ में। तो इसलिए सोशल इंटीग्रेशन मतलब अभी आजकल तो बच्चों ने आपस में खेलना ही बंद कर दिया है। ये सब करने से हम चाहते हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकले और दोस्तों के साथ हंगामा करें, जैसे बचपन में हम लोग करते थे। टीम बिल्डिंग यही होती है। अभी आप देखेंगे 10-10, 20-15 बच्चों का खेल होगा तो उसमें हर एक बच्चा की प्रकृति अलग होगी, लेकिन सब लोग एक-दूसरे के साथ काम करना, साथ में कैसे लीडरशिप डेवलप हो जाता है अपने आप ही, ये है। और सारे हमारे जो गेम है वो फिजिकल फिजिकल गेम्स है, तो फिजिकल फिटनेस और इमोशनल वेल-बीइंग तो होना ही होना है। अंत में ये हम कह रहे हैं कि हमारा खेलने का मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग ओलंपिक में मेडल जीत लें और हमें लगता है कि अरे रैंकिंग में हमारी 20 के बाद आ रही है, हम कैसे हैं सबसे बड़ा कंट्री हो, वो हमें नहीं देखना है। हमको देखना है कि भारत में खेल वाली मानसिकता होनी चाहिए, खेल को महत्व देना चाहिए और हम लोगों ने क्या किया कि भारतीय खेलों को खत्म किया और विदेशी खेलों को अपना लिया और विदेशी खेलों को खेलने के लिए हमारे पास बहुत कम फैसिलिटी है, कुछ स्कूलों में, महँगे स्कूलों में और कुछ महँगे क्लब्स में और उसी के बल पे हम ओलंपिक कैसे जीतेंगे। मेरे विचार में करीब 1 से 2% लोग ही भारत के हैं जिनके पास ये वेस्टर्न खेलों की सुविधा है। टेनिस हो, बैडमिंटन हो या इवन क्रिकेट, हॉकी भी हो, बड़ा-बड़े फील्ड कहाँ मिलते हैं? शहर में 2 या 3 होगा। वैसे और ये गेम जो होते हैं हर जगह खेल सकते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें खेल की मानसिकता लानी है, स्वास्थ्य के हिसाब से, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से। मेडल मेडल जीतना अपने आप हो जाएगा बाद में, उसी में से लोग निकल आएँगे। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि 6 गेम को हम लोगों ने लिया है कि पूरे साल में 6 गेम की ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे हम लोग। हर एक खेल के लिए 2 ट्रेनिंग सेशंस होंगे इस तरह के और जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जहाँ भी आप हैं, उसी में से आप इंडियन गेम जैसे कि निशा जी ने बताया कि ये किसी बास्केटबॉल कोर्ट या टेनिस कोर्ट में हम लोग खेल सकते हैं ये। हमें अलग से कुछ नहीं करना है, कोई खर्चा भी नहीं करना है। और हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं जैसे कि अभी देखें आप कि पिछले कुछ दिनों में कबड्डी तो आगे आ चुका है। खो-खो भी आगे आ रहा है और पिट्ठू ये 3 गेम जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि मेन स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं। जो थोड़े-थोड़े अलग हो चले थे, वो आने लग गए हैं। आजकल के समय में कमर्शियलाइज़ेशन हो जाता है किसी खेल का तो उसको सफल माना जाता है। और धीरे-धीरे अगर हम लोगों ने देख लिया कि कबड्डी अगर सफल हो गया है क्योंकि उसको टीवी में ऑडियंस मिल गए हैं, तो पिट्ठू देखेंगे तब तो उनको और भी मज़ा आएगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग गेम है। हमने जब भी खेल देखा है तो उसमें जो सारे लोग हैं लगातार कूदते रहते हैं, इतना एक्साइटिंग गेम है ये। कबड्डी से कहीं ज़्यादा और क्रिकेट का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत ही बेकार बोरिंग गेम है, कोई कोई खुश नहीं होता उसमें। तो सॉरी क्रिकेट वाला क्रिटिसिज्म अभी छोड़ देते हैं। तो हम लोग को इन गेम्स को बाकी गेम्स के बराबर लेके चलना है और समय के साथ हम लोग इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएँगे, कोई फैसिलिटी बना दें, एक ऐसा जगह बना दें जिससे भारतीय खेलों के लिए समर्पित हो कि उसमें पिट्ठू खेला जाए, कबड्डी खेली जाए वगैरह-वगैरह, तो आगे चल के ऐसा होगा। और ये सारे भारतीय खेल को अभी हम लोग बीज बो रहे हैं और थोड़े समय के बाद ये सारे खेल उतने ही ज़्यादा सेंट्रल बन जाएँगे जितने अभी वेस्टर्न खेल हैं। तो अभी आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, अब देख के चलिए फ्यूचर में करियर भी इसी तरफ आने वाला है, कमर्शियल भी आने वाला है और करियर भी आने वाला है। और हम लोग नेशनल लेवल पे कोचेज़ों को रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे इत्यादि। तो यही आज का था क्यों भारतीय खेल खेलना है। ये हमारा वेबसाइट है, जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं। जो हमारा प्रेज़ेंटेशन है वो, आज का वीडियो है वो, खेलने के तरीके, रूल्स सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएँगी। और उसके अलावा एक हम आपको ये दिखा दें वेबसाइट खोल के दिखाएँ तो समय लग सकता है, खुला हुआ है वैसे। लेकिन आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया हमने, कि भारतीय खेल डॉट इन पे जाएँगे तो पहला पेज ऐसा दिखता है। एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ शेयर करने का, 1 सेकंड। हम आगे चलते हैं। अमिताभ जी, कि आपने हाँ, हम दिखा देते हैं स्लाइड्स पर। स्लाइड पे दिखा दें? जी, जी, जी। ठीक है, तो चलो आप सामने ही है वो। तो भारतीय खेल का ऐसा वेबसाइट है, अभी हमने सामने में पिट्ठू का फ़ोटो डाला हुआ है और वहाँ पे आप थोड़ा-सा दाहिनी तरफ जाएँगे तो वहाँ पे जॉइन अस लिखा हुआ है और बाकी सारी डिटेल्स तो आप पढ़ेंगे ही, जॉइन अस में आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे जाकर के हमें जॉइन कर लीजिए। आपको ये फॉर्म दिखेगा, अपना नाम कहाँ पे है वगैरह डालना है आपको स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन ताकि हम आपसे टच में रह सकें। अगला इवेंट होगा, उसका अनाउंसमेंट इसी पे होगा। तो आपको 3 जगह ध्यान रखना है। एक तो है कि हमारा भारतीय खेल डॉट कॉम हर एक चीज़ का एक सेंट्रल पीस है। यहाँ पे हर चीज़ से हम लोग सारी कम्युनिकेशन यहीं से जाएगी। आप लोगों का जॉइनिंग भी यहीं पे होगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए भारतीय खेल डॉट इन उतना आसान भी है याद करने में।
और हाँ, तो ये गेम ये वेबसाइट के बारे में इतना ही कहना था। अब बाकी आप खुद देख लेंगे। और उसके आगे अनुराधा जी आपको हम बुलाते हैं थोड़ा सा माई गव के बारे में, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बात करने को। एंड यू प्लीज क्लोज एज वेल, आवर पार्ट इज डन। तो थैंक यू वेरी मच। हमने अभी इस गेम के बारे में, इस गेम के प्रयोजन, क्यों खेलना है इसके बारे में जाना है, कैसे खेलना है ये भी जाना है। और अभी जस्ट हमने सोचा है कि आपका भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए हमने ये कोशिश किया है। सो वी ट्राई टू मेक इट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर्म. So the competition is not so much of, the school competition that you normally follow, but because of the objective of the IKS division and the collaborating organization to popularize this game as much as possible within society, तो हमको आपका भी मदद चाहिए इसके लिए. And for that we have created a competition on MyGov. The competition's idea is that you have to put up promotional videos. तो आपको एक promotional video बनाना पड़ेगा इस खेल के ऊपर, जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि आपका जो टीम है of instructor and students वो खेल रहे हैं, उसके बारे में कई बहुत encouraging, inspiring चीज़ें बोल रहे हैं. और एक अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट हो तो आप एक मोटो बना सकते हैं इस गेम के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये गेम खेलें. और हमारे यहाँ पे 3, और ये इसका YouTube मैंने आप एक लिंक बनाएंगे, जिस लिंक को आपको MyGov पर अपलोड करना पड़ेगा. So one important thing is that only those teachers who have registered on our website, only those participants who have registered on our website will be judged for their uploads. So kindly make sure that you are registering on the Bharatiya Khel Ka website, all right, as a teacher. We will be making this video available so that those who have missed it can also learn more about it. There will be different categories of judgments. So the first category of judgment is that we will have 3 groups. So the first group is for school education, for the school teachers, instructors, etc., PE instructors. The second is for the higher education, and the third is for the rest, because this is going on MyGov. So there might be other clubs, other NGOs, etc., who are working with children. And this game is not only limited to children. Whoever is playing this game can participate in it. So these are the 3 groups, and within each of the groups, we will have 2 categories of judgments. One will be the judges' vote, so where the judges will try and identify the best promotional video. Or dusra one will be the popular vote, which would be that we will try and request you to upload it and promote your videos on social media as much as possible. And based on the highest number of votes, we will be declaring a winner on that. There will be appreciation certificates and winner certificates that will be given finally. So the details of this competition can be found on MyGov. We will be uploading the link on our website. So please click on the website and when you want to register. The dates that you will find is the 7th of November, starting from today. And the last date for updating is on the 30th of November. So for every game, we have 2 months. One game, the first month is when we announce the game, the launch month. And then the second game is when you have to play the game and teach and upload your competition link by the second month. So this month we are going to be doing Lagori, and we request you to upload your videos. The next month will be the second game, which is going to be Kho-Kho. So December, we will launch Kho-Kho. In January, you will be required to play the game as much. You can start playing it in December itself, but the last date for uploading your videos will be 31st of January. In this way, in 1 year, from November to next year November, we will try to introduce 6 games. So 1 game every alternate month without breaking for the vacation. So in the vacations, we'll try and introduce games which everybody can play even if you're not in school. So this is the manner in which we are going to be presenting all these games and asking you to participate on for the competition. So please make sure that you're creating this popular videos and you are trying to bring this game as much as possible to as many people as you can reach out to. And in this program, we are also collaborating. We are very fortunate to have with us Shri Arun Gupta ji, who is from the Indian Revenue Services, and he's the director of the Fit India program. So I request you to go to the next slide, please. And I request Shri Arun Gupta ji to kindly tell us a little more about the Fit India program and how the Bharatiya Games are going to be playing a very important part of the Fit India movement in itself. So over to you, Mahodaya.
you, Anuradha ji, and नमस्कार everyone. तो फिट इंडिया मिशन के साथ में हम लोग इंडिजिनियस गेम्स के प्रमोशन के लिए भी काम करते हैं और 2019 में ये डिसीजन लिया गया था कि हमें बहुत सारे भारतीय गेम्स जो हैं इंडिजिनियस गेम्स है, ट्राइबल गेम्स हैं, इनको आगे प्रमोट करना है। तो अभी हम बेसिकली 3-4 गेम्स को ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं। उनमें से एक थांगता है, एक गटका है और एक मलखम्ब है और एक योगासन है। ये 4 गेम्स तो इंडिजिनस गेम्स हैं जिनको कि अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। इनमें योगासन और जो मलखम्ब है इनको हमने ऑफिशियली खेलो इंडिया गेम्स में इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा जो फिट इंडिया मिशन है, फिट इंडिया मिशन में हम जो स्कूल्स के साथ मिलके काम करते हैं और हमारे 2 बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट हैं। एक है फिट इंडिया क्विज और दूसरा हमारा इवेंट होता है फिट इंडिया स्कूल वीक। तो फिट इंडिया स्कूल वीक के रीच के बारे में आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमने 5.56 लाख मतलब लगभग 5.5 लाख स्कूल्स को कनेक्ट कर पाए थे फिट इंडिया मिशन के स्कूल वीक प्रोग्राम के माध्यम से। और जो क्विज हमारा है, क्विज में लगभग जो 1,70,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर हमारे क्विज में और लगभग 43,000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद में जो हमारे इसमें स्टेट राउंड होता है, नेशनल राउंड होता है। तो इसमें हमारा जो फिट इंडिया क्विज होता है उसमें हम जो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं फिटनेस से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसमें हम इंडिजिनस गेम्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बट बिकॉज अभी तो हम एक डेडिकेटेड कैंपेन चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इंडिजिनस गेम्स के लिए, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट होगा, हम आपको अप्रोच भी करेंगे कि आप हमें इंडिजिनस गेम्स के रूल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए ताकि हम आने वाली जो हमारी फिट इंडिया क्विज है उसके स्टेट राउंड में और नेशनल राउंड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को और शामिल कर सकें। और जो इंडिजिनस गेम्स के अरुण जी, आपकी वॉइस चली गई, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। नमस्ते अरुण जी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ, हाँ अभी 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 सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि इस बार से हम लोग अपने जो फिट इंडिया क्विज है उसमें इंडिजिनस गेम्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। के साथ में जो हमारा इंडिया स्कूल वीक 15 नवंबर से शुरू होने वाला है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है कि हम स्कूल्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इंडिजिनस गेम्स को भी खेलें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें। तो मैं अनुराधा जी के साथ में अभी लेटर भी शेयर करूंगा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी लिखा है सभी राज्य सरकारों को और जो सीबीएसई को। उस लेटर के बेसिस पे आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी स्कूल्स को कि वो ये इंडिजिनस गेम्स में फोकस करें, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज में तो इंडिजिनस गेम्स शामिल है ही। और हम लोग अभी एक मीटिंग भी करने वाले हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, तो उसमें भी हम ज़रूर इस पॉइंट को रेज करेंगे कि जो इंडिजिनस गेम्स है, इंडिजिनस गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में फिट इंडिया स्कूल वीक मनाते समय शामिल किया जाए। और जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भारतीय खेल हैं, भारतीय खेलों के बीच में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त खेल हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक पॉइंट ये भी आया कि हमने दोनों खेल की एक तुलनात्मक अध्ययन किया है, एक जो कंपैरेटिव स्टडी उनका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें मेरा इतना ही कहना है कि हमारे देश में लोग भारतीय खेल नहीं खेलते हैं क्योंकि भारतीय खेलों को लेके कोई उनको कभी किसी ने बताया नहीं और एक तरह की जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक हीन भावना है। तो उसको दूर करने का जब भी किसी इंसान के मन से आपको हीन भावना निकालनी है तो ये मतलब मेरा असेसमेंट है कि उसको हम तुलना करके कभी निकाल नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारे गेम की जो अच्छाई है वो हम लोगों को बताएं। किसी और गेम से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वो गेम खेल सकते हैं वो उन गेम्स को खेलें। हमारी फोकस तो इस बात में रहनी चाहिए
कि हमारे जो गेम्स हैं उनको हम लोगों तक कैसे परिचय कराएं। और हमारे गेम में इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि एक बार जब लोगों के बीच में वो जाएंगे तो अपने आप जगह बना लेंगे। हमने कबड्डी को डेवलप होते हुए देखा है, हमने मलखम को, योगासन को डेवलप होते हुए देखा है। आज योगा की स्वीकृति दुनिया के लगभग 190 देशों में है। और अगर उसको हम योगा को ओलंपिक में शामिल करना चाहेंगे तो योगा फेडरेशन उसके लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम उसको लेके जाएंगे तो उसके एक्सेप्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको दुनिया के 190 देशों ने शामिल किया है। तो इस तरह से हमारे मिशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पे हम धीरे धीरे करके, और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मलखम्ब है, मलखम्ब को लेके भी काफ़ी प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है। और हो सकता है कि अगले ओलंपिक तक इसको हम दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ले जा पाएं और शायद वो ऑफिशियल गेम्स की कैटेगरी में इंक्लूड हो पाए। जैसे कि मलखम्ब फेडरेशन से मेरी बात होती तो दे आर क्वाइट होपफुल कि उनको शायद जल्दी ही ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस ये हमारे जो प्रोग्राम थे इंडिया के, और उसके माध्यम से किस तरह हम उनको इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहता था। तो मेरी तरफ से इतना ही अनुराधा जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत बढ़िया सब बताया। एक तो है कि हमारे देश में स्वास्थ्य का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब शारीरिक व्यायाम वगैरह का जो इम्पोर्टेंस है, उसको आपने उद्धृत किया और बताया कि फिट इंडिया में कैसे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला है कि हम गेम्स खेलें। और भारतीय गेम्स लोग इतना खेलते नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं है। तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा, और यही पे हम सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका सहायता मांग रहे हैं कि इन गेम्स को आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे समाज में ये गेम्स खेलते आए हैं, तो हम इन गेम्स को खेलें। और जो अभी वर्तमान क्रीड़ा है उनके साथ साथ इसको भी, जैसे अभी कबड्डी का इतना लोग जान रहे हैं, उसको खेल रहे हैं, तो जितना जितना लोग जानेंगे उतना उतना उस गेम का शान बढ़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सहयोग के लिए हमारा हमेशा हम उसके लिए आभारी रहेंगे, और आपके पास आते ही रहेंगे कि आप हमारे प्रयत्नों को आप आगे ले जाए आपके भी कार्यक्रमों के द्वारा। सो बहुत धन्यवाद जी। और यहीं पे हम सोचते हैं कि बहुत धन्यवाद। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम एक बार हमारे तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप अमिताभ जी शेयर करना बंद करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट कई क्वेरीज लेते हैं, क्योंकि बहुत जो इंस्ट्रक्टर्स आए हैं वो बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं कि वो भी हमारा कुछ प्रश्न पूछे, कुछ समझने का कोशिश करे। तो हमारा जो गोल है वो है कि खेलेंगे हम, जीतेगा भारत। ये खेल खेलेंगे तो फिर जीतेगा भारत इसके जरिया। तो आप अभी प्लीज विल ओपन इट अप। आप अपना हाथ अगर ऊपर कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, आप अगर बताएंगे तो हम आपको अनम्यूट करके आपको मौका देंगे टू आस्क योर क्वेश्चन। सो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। सकते हैं, तो किसी को पूछना हो तो आवाज आ जाएगी। आवाज नहीं आएगी बिकॉज दे आर ऑल म्यूटेड। So नहीं वही please see how you can take them. So can you put your hands up? Can you put your hands up, or Yes. is that possible? Or if you let us know on chat, we will unmute you. अजय जी कुछ पूछ रहे थे, अजय शर्मा जी कुछ पूछ रहे थे। अजय शर्मा जी, तो Okay, पीयूष I'm जी उनको going to please unmute unmute. कीजिए। Yes. पीयूष और जी अगर सबको किसी को प्रश्न पूछना है, please feel free to write it on a chat. If you can raise your hands, please do so. हाँ बताइए अजय शर्मा जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सारे पैनलिस्ट को? बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो काफी चेहरे मेरे लिए नए हैं, और पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। और बहुत खुशी हुई थी कि जब मैं पहली बार पिट्टू या सितोलिया जैसे खेलों में एक ही खेल के काफी सारे नाम भी है। खुशी इसलिए क्योंकि आप सभी मिलकर हमारे भारत के अपने खेलों से हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी स्टेप लिया है। सबसे पहले तो मोदी जी को, अब उनकी बारे में मैं क्या ही बोलूं, बाकी सब बोल चुके हैं। तो साथ ही समय ना गंवाते हुए मुझे कुछ और भी बोलना था, बट इट्स ओके, मैं सीधा सीधा प्रश्न कर लूँ तो अच्छा रहेगा। एंड हमारे कृष्ण गोपाल जी भी हैं, काफी सारे सवाल करके नेशनल पे जब मैं खेलने गया था तो बहुत परेशान भी किया था, शायद मुझे याद रखे होंगे। अच्छा लग रहा है। और बाकी सबको पश्चिम बंगाल और मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को। सो
कुछ क्वेश्चन थे, वो क्या मैं एक साथ कर लूं या फिर 1 बाय 1 करूं? एक साथ पूछ लीजिए। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो टाइम कॉम्बिनेशन को लेकर है कि क्या भविष्य में पिट्टू में जो ये टाइम कॉम्बिनेशन है 20 मिनट्स या 25 मिनट्स और एक ही ब्रेक रहेगा क्या? दूसरा सवाल, जैसे कि संगीता जी पिट्टू खेल के बारे में कह रही थी, सिखा रही थी कि हाउ टू प्ले पिट्टू। सो कमर के नीचे ही मार सकते हैं तभी आउट होंगे या फिर पॉइंट्स वगैरह ये सब कुछ। तो 2-3 नेशनल अभी तक मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो अलग बात है कि हार का सामना हमें करना पड़ा, खैर कोई जीतता है कोई हारता है वो अलग बात है। लेकिन अभी तक मैंने देखा है कि पीठ में या छाती में कमर गले के नीचे भी बॉल अगर लगती है तो वहां भी आउट का करार अंपायर की तरफ से दिया जाता था। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यही था कि हमें भी अनम्यूट किया जाए, हम कुछ बीच में कह सकते थे, खैर वो अलग है। डिस्प्ले एट अंपायर डेस्क, भविष्य में क्या अंपायर डेस्क पे डिस्प्ले रहेगा क्या? क्योंकि पॉइंट्स को लेके काफी क्वेश्चंस या फिर जैसे क्रिकेट में अदर्स खेल में डिस्प्ले रहते हैं और डिस्प्ले में पॉइंट्स अगर शो करते हैं तो गेम का रुचि और भी ज्यादा बढ़ता है। खेलने वाले के साथ साथ बाहर जो भी देखते हैं उनका रुचि और भी बढ़ेगा। ये मेरा सुझाव भी है और प्रश्न भी है। अच्छा, और एक जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में पूछूंगा, प्लीज इसका जवाब अगर दे दे तो माफी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज। कृष्ण मैं गोपाल, मैं इसके आंसर मैं देता हूँ। मैं अजय जी को जानता भी हूँ। आपका आवाज इतना क्लियर नहीं है, ये एक समस्या है। आप बिना बिना ब्लूटूथ के बिना ब्लूटूथ के ट्राई कीजिए। हेलो, हाँ अब आ रही है मैम क्लियर? बेटर है, ये बेटर है ना जी। अजय जी, आपका जो सजेशन था, हमने लास्ट उसमें जब हम मिले थे तो हमने जो डिस्प्ले का है, डिस्प्ले हमारा जो अब नेशनल जो होगा उसमें हम बकायदा पॉइंट्स जो है वो डिस्प्ले करेंगे। यानी आपने जो कही थी वो बात ऑलरेडी हम लोगों के माइंड में थी और हम ये लोग इस पे काफी रिसर्च कर ही रहे थे, मतलब सोच ही रहे थे। दूसरा रहा कि जो ड्यूरेशन का है। हेलो, हाँ, दूसरा हमारा जो ड्यूरेशन को लेकर के जो हमारा होता है कि ड्यूरेशन एक्चुअल में अगर हम इसका ड्यूरेशन मीन्स ये 2 क्वार्टर्स जो है, 2 क्वार्टर्स में ही मीन्स 2 हाफ ही होंगे इसके, यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। और उसमें हमने क्वार्टर्स इसलिए कि पहले हमने इसको चेंज इसलिए करा था कि स्ट्राइकर टीम खेल रही है, फिर स्ट्राइकर टीम के बाद एकदम डायरेक्ट फिर डिफेंडर टीम स्ट्राइक पर आएगी, तो वहां पर गेम में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट या कहा जाए कि एक्साइटमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने कि इसको 2 पार्ट में, मतलब पहले एक स्ट्राइकर टीम खेली, स्ट्राइकर के बाद में हमने डिफेंडर को बुलाया। अब दोनों ने अपने आप को पहले चेक कर लिया कि मेरे कितने पॉइंट हो रहे हैं कितने, और मुझे वीक पॉइंट पता लग गया कि स्ट्राइकर का वीक पॉइंट क्या है, डिफेंडर का वीक पॉइंट क्या है। जो नेक्स्ट वन हाफ के बाद जब सेकंड टाइम हम खेलने जाएंगे तो उस समय हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मीन्स ऐसा ना हो कि हमने एक बार खेला, हम हमारा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके कारण हम हार गए मैच। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 क्वार्टर्स में हमने इसलिए करा था इससे कि अगर हम एक एक हाफ यदि हार जाते हैं तो वहां पर हमको एकदम डिमोटिवेट नहीं होना कि हाँ नहीं अभी हमारे पास एक चांस और है, और अब हमें जो अपोनेंट टीम है उसका भी पूरी प्रैक्टिस और स्किल्स पता लग गई, अब हम सेकेंड हाफ में किस वे में खेलेंगे तो वो प्लान आउट करके। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने इसको 4 क्वार्टर्स में करा था। ठीक है अजय जी? जी ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। और भी कोई क्वेश्चन था आपका? हाँ, वो कुछ कमर के नीचे लगने वाला पूछ रहे थे। असल में मैंने पहले भी कहा कि मैम ने जो संगीता मैम ने आप बताया अपना ये आप ईयरफोन निकाल दीजिए और बात कीजिए, क्योंकि अभी भी एक एको आ रहा है, मतलब आपका आवाज इतना क्लियर नहीं है। आप ट्राई कीजिए, तो फिर देखो आवाज वॉइस से आ रही ये शायद। बेहतर है। नहीं तो ना एको आ रहा है, दोनों दोनों का एक एको हो रहा है। आप ट्राई कीजिए। पहली जो मैम ने संगीता मैम ने बताया है अजय जी, वो जो रूल्स है वो हमारे मीन्स खेलने के लिए, मीन्स अगर हमारे पास यदि पूरा फील्ड नहीं है वहां के लिए वो रूल्स है कि अपने को कमर के नीचे मारना है, लेकिन कमर के नीचे नहीं मारना है।
लेकिन अगर हम हमारे पिट्ठू फेडरेशन आप हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो पूरी बॉडी में मारना ही अलाउ है, केवल और केवल डेंजर जोन पर हेड पे मारना अलाउ नहीं। ठीक है अजय जी। ठीक है, हाँ बढ़िया। तो I think तो वो क्लियर हो गया। अजय जी का है क्या? अजय शर्मा जी अनम्यूटेड है क्या? पीयूष जी? जी अजय शर्मा जी आप जी 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 एक्चुअली मैं म्यूट माई सेल्फ, एक्चुअली म्यूटेड माई सेल्फ, दैट्स राइट। थैंक यू वेरी मच कृष्ण गोपाल जी। अच्छा लगता है कुछ भी नई चीज़ों का जब ज्ञान जब मिलता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, अपने जॉब के क्षेत्र में हो। बट ये बहुत अच्छा है, खेल में लगे रहना जीवन को एक नई दिशा मिलती है हमें। और एक ही सवाल करूंगा अभी कि जैसे वो जैसे ग्राउंड का जो भी डायग्राम आप लोगों ने दिखाया, उसमें एक था डिफेंडर टीम का बॉक्स, एक था स्ट्राइकर टीम का बॉक्स। जब हाफ टाइम होगा चेंज होने के बाद, जब डिफेंडर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइकर जब डिफेंड करेंगे, तो क्या वो बॉक्सेस भी चेंज होंगे या फिर बॉक्सेस वही रहेंगे? तो वही रहेंगे, केवल प्लेयर चेंज होंगे। मेरे ख्याल से वो जो पूछ रहे हैं कि अच्छा, तो जो स्ट्राइकर थे वो स्ट्राइकर, मतलब जो उस बॉक्स में आएंगे वो स्ट्राइकर ही रहेंगे। यानी जो बॉक्स बने हैं वो बॉक्स बने हैं सेम उसी पैटर्न में। जो अच्छा, स्ट्राइकर है वो डिफेंडर पे हो जाएंगे और डिफेंडर सारे स्ट्राइकर पे हो जाएंगे। डन 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 डन। अजय जी, ग्राउंड की एक ही हिस्से में क्रीज लाइन बना होगा, तो जिस तरफ क्रीज लाइन बना है उसी दिशा में वो ब्रेकर्स रहेंगे, क्योंकि उनको वो लाइन से स्ट्राइक करना है। तो जो ब्रेकर्स बनेंगे वो क्रीज लाइन वाले एरिया में आ जाएंगे, जो डिफेंडर बनेंगे वो बिना क्रीज लाइन वाले एरिया में होंगे। क्रीज लाइन हम एक ही साइड बना रहे हैं, दोनों साइड नहीं बना रहे हैं, है ना? शुक्रिया संगीता जी। और अगर हम अजय जी हमारे उसके पिट्ठू के अकॉर्डिंग बात करें तो जो अपने स्ट्राइकर लाइन होती है ना, जी स्ट्राइकर लाइन के बैक साइड पे जो प्लेयर्स खड़े होते हैं वो डिफेंडर खड़े होते हैं, और डिफेंडर जहाँ केचर खड़ा होता है, केचर के जो लेफ्ट साइड खड़े होते हैं सारे स्ट्राइकर खड़े होते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। बस आखिर में यही क्या कि मैं अपने वक्तव्य ये कहूंगा कि नए नियमों के साथ बहुत उत्सुक भी हूँ कि अगले नेशनल में पार्टिसिपेट करूँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पिट्टू को भी कि जितना आगे बढ़े, सबके लिए एक नया मौका, एक नया दिशा सबके लिए आने वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद अजय जी। आपसे जस्ट ये अनुरोध रहेगा कि आप इस गेम को एटलीस्ट हमारे माईगव में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताइए कि वो रजिस्टर करें वेबसाइट पर, और कि वो एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो बनाए। मेरे ख्याल से ये जो थोड़ा सा एफर्ट बनाएंगे हम वो प्रमोशनल वीडियोस बनाने के लिए और अपने अपने नेटवर्क्स में उसको प्रचार करेंगे, उससे बच्चों का भी उत्साह बनेगा। बच्चों को ही लगाइए इस काम में, आजकल तो बच्चे बहुत होशियार है, वो भी लग जाए इस काम में, वो ही वीडियोस बनाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट इफेक्टिव प्रमोशनल वीडियोस अगर बना सकते हैं उससे मेरे ख्याल से हमारे सबके पास मटेरियल्स ट्वीट करने के लिए हम इन्फ्लुएंसर्स को ला सकते हैं। ऐसे बहुत सोचा जा सकता है आगे भी इस गेम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी दिशा में हम काम कर भी रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा भी हमारा प्रयास जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। एक और प्रश्न था मेरे ख्याल से ना यहाँ पे, एक हरीश जी, हरीश चौबे जी को आप एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज पीयूष जी? डन। हरीश चौबे जी आप पूछेंगे प्लीज। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो रूल्स है ये पिट्टू के हैं या लगोरी के? सर जितने भी रूल्स हैं वो सारे हमारे पिट्ठू के ही हैं। हाँ मैम, हमारे हरीश चौबे जी जो है ये भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। जी, और ये सारे रूल्स जो है सर आपके पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही है सर। सर वैसे तो आप महाराष्ट्र के हैं, तो लिंगोरशा के भी हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हमने आईकेएस डिवीजन की शुरुआत जब इंट्रोडक्शन कर रही थी हमने एक बोला था ना कि ये एक दृष्टि के ऊपर आधारित है ये चीज। हम तो ये भारतीय परंपरा का जो एक दृष्टि है वो ये है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, उसका स्वरूप
मतलब आधार का स्वरूप एक जैसा है, बट उसके नानान स्वरूप है, नानान रूप होते हैं, नानान नियम है, और हम उसी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि इसको सिर्फ एक ही तरह से खेला जाए, क्योंकि इसके हर जगह में अपने तरीके से वो कस्टमाइज कर ले वो। और मगर आपको ये भी समझना है कि अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो उसके लिए पिट्टू फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो इसको आपको स्टैंडर्डाइज करके एक गेम को एक जगह ले जाएंगे। बट गेम उससे सीमित नहीं बनता है। तो इस गेम को आप लागोरी बुलाइए या सतोलिया बोलिए या येलुकालू बोलिए, कुछ भी आप बताइए, इसको खेलना है। और इस गेम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है ना, मतलब जिस इससे जो स्किल्स हैं, तो मैं थोड़ा जस्ट रिक्वेस्ट करूंगी संगीता जी को कि वो थोड़ा सा वो लाइफ स्किल्स के बारे में अगर बता सके तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। यही मैं सोच रही थी कि मेरा ये रह गया बोलना। लाइफ लेसन्स, हमारे जितने भी भारतीय खेल हैं वो जीवन शैली से उतर के आए हैं। पारंपरिक हमारे फेस्टिवल्स में, त्योहारों में या मंदिरों में भी हमारे गेम के वो सिंबल्स पाए गए हैं कि जैसे नौंदी मंदिरों में खेला जाता था। तो जो भी खेल हैं उसमें साइंटिफिक और वैदिक ज्ञान उसमें भरा हुआ है। तो कोई भी खेल आप सोचिए कि 5000 साल से जिंदा है और सबको अभी इतना लुभा रहा है, तो उसके तत्व कितने स्ट्रांग है। तो लागोरी या पिट्ठू खेल के जो तत्व हैं वो ये है कि पूरा एक्शन से भरा हुआ है कि कोई भी प्लेयर जाके सिर्फ वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, वो पूरा कंसंट्रेशन उसको चाहिए कि कौन सा एक्ट उसको कौन सा ले लेना है, ग्रैब करना है। अगर बॉल आया तो उसको कैच करना है, अगर पत्थर के पास बैठा है तो उसको सजाना है, अगर वो किसी ऑपोजिट पार्टी के पास खड़ा है तो उसको आउट करना है। मतलब उसका पोजीशन क्या है वैसे उसका रोल चेंज होता है। दिस इज सो फैंटास्टिक। कोई भी खेल आप ऐसे नहीं देखोगे कि जिस जगह वो खड़ा है उस जगह का रोल उसको निभाना है। तो इसमें लाइफ लेसन ये है कि आप कितना फास्ट डिसीजन ले सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और दूसरों का देख के आप रिस्पॉन्स देते हो कि उसने फेंका तो मुझे कैच करके उसका क्या करना है आगे। ऐसा नहीं कि सब खेल रहे हैं मैं देख रहा हूँ। तो दिस इज लाइफ लेसन ये है कि आप कितना स्विफ्ट एक्शन कर सकते हो, अपने माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हो। दिमाग ने सोचा और हाथ ने किया, तो ये एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटीज होती हैं कई बार हम वो मैच नहीं कर पाते हैं। दिमाग कुछ सोचता है और फिजिकल हम कुछ और कर देते हैं। तो ये थीम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें रोल शिफ्ट होने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा है, सारे फैकल्टीज उसमें शामिल हैं कि आप ध्यान भी दे रहे हो, दूसरे टीम प्लेयर्स को साथ भी दे रहे हो और फिर भी अपना रोल निभा रहे हो। तो सीखने का ये है इसमें कि जब ब्रेकर टीम ही तोड़ती है, ब्रेकर टीम ही उसको वापस सजाती है, तो लाइफ में कुछ अच्छी चीज बन के बिगड़ गई है। हाउ यू रीअरेंज इट, हाउ यू गैदर योरसेल्फ और फिर से आप उसको शुरू करते हो, और उसमें कितना मजा है। ये गेम का एक जीवन तत्व है। बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बोला है कि जैसे हम योगा क्षेत्र में बोलते हैं कि योगा इज नॉट ओनली व्हाट यू डू ऑन द मैट, योगा इज व्हाट यू डू ऑन द मैट ऑफ लाइफ। तो वैसे ही हर खेल सिर्फ आप वो जो कोर्ट में या जो जगह में खेल रहे हो उसी तक सीमित नहीं रहता है। उसमें जो सीख होता है वो हमारी जिंदगी भर हर अलग अलग क्षेत्रों में उसका फायदा हम महसूस कर सकते हैं। सो प्लीज फिर से यहीं पे हम मेरे ख्याल से सबको निमंत्रित करते हैं कि खेलेंगे हम तो जीतेगा भारत। इसी शब्दों से हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। अमिताभ जी, संगीता जी, कृष्ण गोपाल जी, पीयूष जी, सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी, अरुण गुप्ता जी भी आए थे फिट इंडिया से, उनको भी बहुत धन्यवाद। और माईगव को जय अनुसंधान का जो टीम है जिन्होंने इसको बनाया है, यहाँ पे हमारी शिवानी जी हैं और गुरदीप जी हैं जिन्होंने वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर करवाया है। संगीता जी ने वो स्क्रिप्ट लिखा है उसके लिए। तो आप सबको हमारे तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और हमारा शिक्षा मंत्रालय तो हमेशा हमको इस सारे चीज़ों में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ जितने भी चाहते हैं आप स्कूल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग स्कूल्स को, उनको सबको शामिल कीजिए। और हम देखते हैं ये पहला खेल है तो इसका सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना ज्यादा इसका प्रचार करेंगे उतना ज्यादा हम आगे भी खेलों को लेने का साहस करेंगे।
तो प्लीज आप हमारे साथ खेलते रहिए और हम सब जीतेंगे इसके दौरान। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हमारे जैसे डिवीजन में एक नियम रहता है कि हम अंत में भी एक मंत्र उच्चारण करके समाप्त करते हैं। तो एक श्लोक बोल के यहाँ पे खत्म करेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। नमस्कार मैम।